Hello everyone, I am Monica. We are doing a series of in-text citation rules and this is the ninth video of this series, and in this video I will explain quotations. How you will include quotations. Quotations are most effective in research writing when used selectively. Quote only words, phrases, lines and passages that are particularly apt and keep all quotations as brief as possible. Your project should be about your own ideas and quotations should merely help you to explain and illustrate them. आपके रिसर्च वर्क में मेन वैल्यू होती है आपके आइडियाज़ की। कोटेशंस सिर्फ आपकी हेल्प करती हैं ताकि आप अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सको। कोटेशंस जो आप लोगे वो एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज़ हो सकती है, लाइन हो सकता है, पैसेज हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कोटेशन कम से कम लेंथी ली जाएं, क्योंकि आपने अपने वर्क को इम्प्रेसिव कोटेशन से नहीं बनाना है बल्कि आपने आइडियाज़ से बनाना है। द एक्यूरेसी ऑफ कोटेशंस इज़ क्रूशियल. They must reproduce the original sources exactly, unless indicated in square brackets or parentheses. Changes must not be made in the spelling, capitalization, or interior punctuation of the source. You must construct a clear, grammatically correct sentence that allows you to introduce or incorporate a quotation with complete accuracy. Alternatively, you may paraphrase the original and quote only fragments, which may be easier to integrate into the flow of your writings. If you change a quotation in any way, make the alteration clear to the reader by following the rules and recommendations. If your quotation is from prose, if a prose quotation runs no more than 4 lines and requires no special emphasis, put it in quotation marks and incorporate it into the text. And secondly, you need not always reproduce complete sentence. Sometimes you may want to quote just a word or phrase as part of your sentence. अगर आप प्रोज से कुछ कोट कर रहे हैं तो वो 4 लाइन से ज़्यादा आपने कोट नहीं करना है। जो कोटेशन आप दोगे उसे आप इन्वर्टेड कोमास में लिखोगे, कोटेशन मार्क्स का यूज़ करोगे आप, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि पूरी की पूरी लाइन कोटेशन की फॉर्म में लिखी जाए। आप कोई वर्ड या कोई फ्रेज़ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ लिया गया है द बेस्ट ऑफ टाइम, द वर्स्ट ऑफ टाइम एंड पुट कोटेशन मार्क ऑन द। तो आपकी कोटेशन एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज़ हो सकती है, और अगर सेंटेंस हो तो कोशिश कीजिए 4 सेंटेंस से ज़्यादा आप कोट ना करें प्रोज से। यू मे पुट अ कोटेशन एट द बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ योर सेंटेंस, और फॉर द शेक ऑफ वेराइटी और बेटर स्टाइल डिवाइडेड बाय योर ओन वर्ड्स। आप जो कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे वो कोटेशन मार्क्स शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के मिड में भी हो सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। तो जो वर्ड्स आपने कोट किए हैं वो सेंटेंस में कहीं भी हो सकते हैं। उसके साथ आप अपनी लैंग्वेज दीजिए और उसको एक बेटर स्टाइल वो लगेगा। आप अपने शब्दों के द्वारा उसको डिवाइड कर सकते हो, उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हो। एंड इफ़ अ कोटेशन एंडिंग अ सेंटेंस रिक्वायर्स अ पैरेंथेटिकल रेफरेंस, प्लेस द सेंटेंस पीरियड आफ्टर द रेफरेंस। अगर आपकी जो कोटेशन है, चाहे वो वर्ड है, चाहे वो फ्रेज़ है या सेंटेंस है, या अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रही है तो उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर उसका प्लेस बता देना है कि कहाँ से आपने वो ली है। इफ़ योर कोटेशन इज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये तो बात थी कि आपकी कोटेशन अगर एक वर्ड है, फ्रेज़ है या मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस हैं। अब है कि अगर कोटेशन एक्सटेंड्स टू मोर देन 4 लाइन्स when run into your text, set it off from the text as a block indented half an inch from the left margin. Do not indent the first line, an extra amount, or add quotation marks not present in the original. A colon introduces a quotation displayed in this way except when the grammatical connection between your introductory wording and the quotations requires a different mark of punctuation or none at all. A parenthetical reference for a prose quotation set off from the text follows the last line of the
quotation. For example, like this. अगर आप 4 लाइन से ज़्यादा मैटर कोट कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर हाफ एन इंच आपने लेफ़्ट मार्जिन से छोड़ देना है। फर्स्ट लाइन को आपने इंडेंट नहीं करना है। जो आपकी खुद की वर्डिंग होगी उसके बाद आप कोलोन लगाएंगे और उसके बाद आपका जो कोटेड मटेरियल है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ़ अ न्यू पैराग्राफ बिगिंस इन द मिडल ऑफ द कोटेशन, इंडेंट इट्स फर्स्ट लाइन। कि अगर किसी कोटेशन के बीच में से ही नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो आपने फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर देना है, लाइक दिस। सो दिस इज प्रोज सिस्टम एंड नाउ पोइट्री. If you quote part or all of a line of verse that does not require special emphasis, put it in quotation marks within your text, just as you would a line of prose. You may also incorporate 2 or 3 lines in this way, using a forward slash with a space on each side to indicate to your reader where the line breaks fall. प्रोज की ही तरह जब आप पोइट्री में कोई कोट करते हैं तो अपनी वर्डिंग के बाद आप कोलोन लगाएंगे, उसके बाद जो आपने कोट किया उसको आप कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। या तो पोएम में जिस ढंग से जिस लेंथ की जो लाइन दी हुई है आपको एज इट इज़ यूज़ करो। अगर आपने इस तरह से लाइन यूज़ नहीं करनी, अपनी लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल ही रखनी है। और हो सकता है पोइट्री की फर्स्ट लाइन यहाँ ख़त्म हो रही हो, सेकंड यहाँ ख़त्म हो रही हो, थर्ड यहाँ ख़त्म हो रही हो, तो ये जिग जैग सी फॉर्म बन जाएगी। उस कंडीशन के अंदर लाइंस को सेपरेट करने के लिए आपने स्लैश का यूज़ करना है। मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहली लाइन ख़त्म हो गई और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो स्टार्ट हो रही है। यू विल डू दिस थिंग इन पोइट्री. इफ़ अ स्टेंजा ब्रेक अकर्स इन द कोटेशन, मार्क इट विथ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस. अगर आपकी पोइट्री की लाइन चेंज हो रही है तो आपने स्लैश लगाया, लेकिन अगर आपका पोइट्री का पैराग्राफ चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लिया पोइट्री के अंदर ये 4 पैराग्राफ हैं, अगर लाइन चेंज हो रही है तो आप स्लैश लगाएंगे। अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप इस तरह से 2 स्लैश लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो आपने लगा दिए 2 स्लैशेस, 2 forward slashes. Verse quotation of more than 3 lines should be set from your text as a block. In the in-text citation for a verse quotation follows the last line of the quotation. If the citation will not fit on the same line at the end of the quotation, it should appear on a new line flush with the right margin of the page. तो जब आपने वहाँ पर राइट मार्जिन दे देना है, लेकिन उससे क्या होगा कि जो आपका वर्क है वो जिग-जैग वाली फॉर्म में हो जाएगा, आगे पीछे की तरफ लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी। अ लाइन टू लॉन्ग टू फिट विद इन द राइट मार्जिन शुड बी फॉर्मेटेड विद हैंगिंग इंडेंटेशन सो दैट इट्स कंटिन्यूएशन इज इंडेंटेड more than the rest of the block. And if the layout of the lines in the original text, including indentation and spacing within and between them, is unusual, reproduce it as accurately as possible. ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर अगर जो इंडेंटेशन वाली पोजीशन है या जो स्पेस वाली पोजीशन है वो बहुत ही जिग जैग फॉर्म में आ रही है तो उसको आप जितना ठीक कर सकते हैं उतना ठीक करिए. When a verse quotation begins in the middle of a line, the partial line should be positioned where it is in the original and not shifted to the left margin like this. So you will follow these things in poetry. Now drama. If you quote dialogue in a play or screenplay, set the quotation off from your text. Begin each part of the dialogue with the appropriate character's name, indented half an inch from the left margin and written in all capital letters like this, Hamlet. Follow the name with a period and then start the quotation. Indent all subsequent lines in that character's speech an additional amount. When the dialogue shifts to another character, start a new line, indented half an inch. Maintain this pattern throughout the entire quotation.
जब आप ड्रामा का कोई डायलॉग लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने कैरेक्टर का नाम लिखना है। कैरेक्टर का नाम आपने सभी कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। फिर लेफ़्ट साइड से आपने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है। डायलॉग लिखने हैं। जब एक डायलॉग ख़त्म हो जाए, दूसरे पर्सन का जब डायलॉग स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त भी आपने सेम पैटर्न को फॉलो करना है। यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जाम्पल कैरेक्टर in capital letters, then second character also in capital letters, and this is repetition. A short time later, Lear loses the final symbol of his former power, the soldiers who make up his train. यहाँ एक इंट्रोडक्शन दे दी है एक डायलॉग की। Here you can also see the name of the character in capital letters. 1/2 inch margin from the left, and this repeat again and again in the whole drama. I hope this video will help you in your research work. Thank you.